Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now friends, in today's video we are going to discuss the most important news from the daily from the Hindu dated July 9, 2022. Now let's start with the news. जो news जो आज dominate करने वाला है पूरा newspaper, that is about the assassination of former Prime Minister of Japan, that is Shinzo Abe. ओके तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वाड, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके बारे में पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ. हमने इसके बारे में थर्सडे को भी देखा था व्हेन वी वर डूइंग एन एडिटोरियल. सो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ईयर 2007 बाय शिंजो एबे हिमसेल्फ. Okay, and afterwards it was the quadrilateral grouping of 4 countries, and the focus region of quadrilateral security dialogue or quad is Indo-Pacific region. अब इसके जो मेंबर्स होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, जो क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो 4 हैं. जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड देन यूएसए. ठीक है. इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि जापान का इंडिया में जो है, आपने नाम सुना भी होगा, दैट इज़ मुंबई अहमदाबाद मेट्रो, सॉरी नॉट मेट्रो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. ओके, जिसको कहते हैं HSR, सेमी हाई स्पीड रेलवे. सो दिस प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय जापान इटसेल्फ. तो इसका जो फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग जो थी वो जापान से आ रही थी, दैट इज़ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट या हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट. ओके, so this are the some of the things. Now he is the former Japanese prime minister. जो प्राइम मिनिस्टर एबे हैं, इन्हें अभी पिछले साल पद्म विभूषण भी मिला था. he was awarded पद्म विभूषण. okay, so these are the some of the important news related to this background news. now अब हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर. that former Prime Minister Shinzo Abe, who was the Japan's longest serving leader, ठीक है, he died while he was campaigning for parliamentary election, and now he has been killed in the city of Nara. Okay, city of Nara. तो ये भी थोड़ा सा important है. now see what is the, ये जो killing है Shinzo Abe का, now it was the first assassination of any sitting or former Japanese premier or prime minister since the pre-war militarism in 1930s. Now who is the current prime minister of Japan? So we already know, we have seen in the Quad summit also, Fumio Kishida. He is the current Japanese prime minister. Earlier Shinzo Abe, he retired from the post of prime ministership citing health concern. Now see the killer. So the killer's name Tetsuya Yamagami. Okay, so he used the handmade gun and shot the former prime minister while he was campaigning for his party. Now India is going to observe a day of mourning, that is today, Saturday. So India is going to observe a mourning for former Japanese prime minister on Saturday. Means that is today. So morning के time the national flag, it will be flown at half mast on the day of mourning throughout India, and there will be no official entertainment on the day. The next is again here Zubair, Mohammed Zubair, who is the co-founder of the fact-checking website Alt News. He has been granted bail by the Supreme Court. So he was arrested by the Uttar Pradesh police earlier, who have accused him of insulting the religious feeling. The next news is from G20. So US-Russia differences dominate G20 meeting. So if you will just see various multinational multilateral organizations, they are having their summits. We have already seen the 14th BRICS summit, which was hosted in China. Then we already saw G7, which was hosted in Germany, where India was also invited along with Senegal, Argentina, okay, South Korea. And now we are talking about G20. So let's come to G20. G20 के बारे में एक न्यूज़ भी है.
who has been appointed as the Sherpa for G20 मीटिंग. ठीक है, शेरपा जो होते हैं वो एक देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ठीक है, G20 के एक्चुअली 2 ट्रैक्स होते हैं. लेट्स हैव G20 in little detail over here today itself. So if you will just see the G20 meeting, so G20 it consists of 19 countries and one member is European Union. ठीक है, G20 का जो चेयर है इस साल 2020 में इट इज़ हेल्ड बाय इंडोनेशिया. सो द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ G20 इट वाज हेल्ड इन बाली. ठीक है, उसके बाद नवंबर में एक हेड ऑफ स्टेट का मीटिंग होगा. G20 के 2 ट्रैक्स होते हैं. ठीक है, एक होता है फाइनेंस ट्रैक और एक होता है शेरपा. ठीक है, जो फाइनेंस ट्रैक में कौन रिप्रेजेंट होता है? फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI. इंडिया से RBI गवर्नर हु इज शक्तिकांता दास. शेरपा ट्रैक इट इज यू कैन से यहाँ पे पॉलिटिकल डायलॉग्स और जो फाइनेंस और ट्रैक के अलावा जो मुद्दे होते हैं G20 के वो शेरपा में डिस्कस होते हैं. सो इंडिया हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत as the Sherpa of G20. Now India is going to host G20 summit in 2023. ठीक है. Now over here the news is that the foreign ministries meeting was happening in Bali and it was attended by S. Jaishankar, who is our external affairs minister, and he also held talk with US Secretary of State Antony Blinken. This information is important. US Secretary of State and then Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the meeting. ठीक है, तो आपको मैंने G20 का इन्फॉर्मेशन दे दिया और 2 या 3 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर लिया. And who is the Secretary of State of the United States? Then it is Antony Blinken. And who is the Russian Foreign Minister? So he is Sergei Lavrov. Now friends, in editorial, this editorial Beating the Heat, it is about monsoon, Indian monsoon. So we already know that the monsoon wind which brings rain in India, it is called as southwest monsoon wind. Okay, it is called as southwest monsoon wind. So southwest monsoon wind they are directed like this, southeast. After crossing the equator they change their direction and they become southwest monsoon wind. So there are 2 branches of southwest monsoon wind. One is Bay of Bengal branch and one is Arabian Sea branch. Okay, now Mawsynram in Meghalaya is the place in India which receives highest rainfall in India. Mawsynram, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टैटिक जीके में. Mawsynram, इट इज़ इन मेघालय. Mawsynram फॉलोड बाय चेरापूंजी. उसके बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ पे होता है? तो एक तो ये ईस्टर्न रीजन जो है आपका, ईस्टर्न हिमालय रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, दे रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. उसके बाद जो ये वेस्टर्न कोस्ट है आपका, दे रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओके, ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब वेयर माउंटेन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कॉजिंग द रेनफॉल. तो हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में कि बिकॉज ऑफ दिस देयर हैज़ बीन अ फ्लड इन असम. ओके, उसके बाद आगे के न्यूज़ में आप देखेंगे कि अमरनाथ में लैंडस्लाइड हो गया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ पहले. व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट वो हम देखेंगे अभी. एंड देन देयर इज़ लैंडस्लाइड. तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो माउंटेनियस एरिया होते हैं दे आर वेरी मच प्रोन टू लैंडस्लाइड. ये वहाँ का एक डिजास्टर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउंटेनियस एरिया. सो व्हेन एवर हैवी रेनफॉल विल बी टेकिंग प्लेस, the rock structure they become loose and then they slide. but यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है rising temperature. ठीक है, rising temperature के बारे में बात हो रही है. so if you will just see the important point that we in India we are also getting impacted by changing weather pattern. That is very important. Changing weather pattern, we can see that the frequency of monsoon is changing
एंड इट हैज़ बिकम मोर एरेक्टिक। एरेक्टिक का मतलब कि जो पहले पैटर्न था रेनफॉल का वो नहीं हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि पहले के कुछ महीने जो मानसून के होते हैं उसमें कम रेनफॉल हो रहा है, और जो बाद का महीना होता है अगस्त सितंबर, उसमें इतना हैवी रेनफॉल हो रहा है कि कहीं कहीं पे फ्लड आ जा रहा है, कहीं कहीं पे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एरेक्टिक मानसून। एंड देन वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग द फिनोमिना ऑफ कोस्टल इरोजन। उसके बाद एक स्टडी किया गया है बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। दे हैव सेड दैट इफ़ यू एनालाइज द वेदर डेटा ओवर लास्ट हाफ अ सेंचुरी या लास्ट 50 ईयर्स का अगर हम डेटा एनालाइज करें, सो वी कैन से that all India average temperature during monsoon month, that is June to September, it is higher than the summer month, that is March to May. ओके जबकि इसका उल्टा होना चाहिए पर ऐसा है नहीं। तो समर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम है, बट मानसून का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। सो मानसून टेम्परेचर दे वर हायर बाय 0.3 डिग्री सेल्सियस देन द समर टेम्परेचर व्हेन वी कंपेयर इट द 1951 टू 1980। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 2012 से 2021 की बात करें, तो ये जो एनोमली है इट इज़ 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब हम अगर IMD का फोरकास्ट देखें तो इट सेज दैट इंडियाज़ एवरेज टेम्परेचर हैज़ रीजन बाई 0.62 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1901-2020 पीरियड, मतलब 120 साल के अंदर। So India's average temperature has risen from 0.6 to 7 degrees Celsius in the last 100 years. So it means that the temperature is rising, but this rise is not यूनिफॉर्म। मतलब ये यूनिफॉर्म का मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है कि एक रेट के हिसाब से बढ़ा है, कभी ज़्यादा बढ़ा है कभी बढ़ा ही नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ 120 ईयर्स वो बढ़ा है। Now if you will just see the rise in temperature during winter, that is January and February, and post monsoon, that is October to December, then all India temperature they have risen faster than even the monsoon and summer temperature। तो ये और नोटिस करने वाली बात है कि जो राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ है वो दो मौसम में सबसे ज़्यादा हुआ है, दैट इज़ विंटर एंड पोस्ट मानसून। ठीक है, एंड दिस राइज इज़ हायर देन द समर एंड मानसून पीरियड। उसमें अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को देखें लाइक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तो देयर टेम्परेचर इन मार्च वॉज 30.7 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल इंडिया एवरेज वॉज 33.1 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ 2.4 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन द एवरेज। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया का जो नॉर्मल मैक्सिमम है इट इज़ 2 डिग्री टू 7 डिग्री सेल्सियस हायर, और साउथ इंडिया में इट इज़ 4 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस हायर। ओके, उसके बाद let's see the impact. So people have died because of heat waves. So if you will just see that about 2137 people have died in last 5 years between 2015 and 2020, but अगर southern India में देखेंगे तो death is more, that is 2444 deaths। उसके बाद अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड मतलब जो अर्बन एरिया होता है, ठीक है ना, वो कंक्रीट का एरिया होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अर्बन सेंटर्स के जो टेम्परेचर होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसीलिए उस एरिया को हम क्या कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। दैट अर्बन एरियाज दे आर एक्टिंग लाइक अ हीट आइलैंड। सो अर्बन हीट आइलैंड में ऑब्वियसली द टेम्परेचर विल बी वेरी हाई। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इट इज़ कॉज्ड बाई कंक्रीट सर्फेसिस एंड डेंस पॉपुलेशन, and they tend to have more high temperature causing more heat stress. Now National Disaster Management Authority, which was established in 2005, so it is working in 23 out of 28 heat prone states, and they are developing heat action plans. Several states like Gujarat, they have already prepared their heat action plans. Now the next is the author is suggesting कि अब हमें दो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, और दूसरा जो है दैट इज़ रूरल एरिया। यहाँ दो जगहों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा फॉर कॉम्बैटिंग दिस हीट स्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेस्ट एशिया रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशंस। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रीड दिस आर्टिकल 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था तब तक आपको वेस्ट एशिया का डायनामिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। वेस्ट एशिया का जो डायनामिक्स है उसके दो फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन्स मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम एमर्ज होता है। एक तो आपका होता है ईरान वर्सेस इजराइल, और दूसरा आपका होता है ईरान विच इज़ शिया वर्सेस सुन्नी अरब कंट्रीज। ओके,
like Saudi Arabia, UAE, all those. Fine. So these are the two fault lines in अरब वेस्ट एशिया. उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ है. दो चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ. ईरान का जो राइज है स्पेशली अबाउट न्यूक्लियर पावर, it is resisted by both Israel and Sunni kingdoms. Now Israel and Sunni kingdoms, they both are closer to USA. So what happened over here is that Israel does not want Iran to become a superpower. ठीक है, खास करके Israel tried that Iran should not become a nuclear power. Same concern is with the Sunni kingdoms also. Okay, because they don't want Iran to emerge as a significant global regional player in the West Asian region. ओके अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंस दे बोथ आर क्लोज टू यूएस, सो यूएस से ने कुछ ट्राई किया है पास्ट में. सबसे जो फेमस अकॉर्ड है इट इज़ कॉल्ड एज अब्राहम अकॉर्ड. सो दिस अब्राहम अकॉर्ड विच इज़ यू कैन से मेडिएटेड बाय यूएस, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर इजराइल एंड सुन्नी कंट्रीज टू काउंटर ईरान. ठीक है, फाइन. उसके बाद यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट है. तो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो दो कंट्री के बीच में साइन हुआ था, दैट इज़ इजराइल एंड यूएई, हु हैव आल्सो एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन एज वेल एज ट्रेड रिलेशन बिटवीन देम. नाउ देयर इज आल्सो टॉक अबाउट न्यू इकोनॉमिक क्वाड. ओके, न्यू इकोनॉमिक क्वाड, ये इकोनॉमिक क्वाड मिडिल ईस्ट का क्वाड है. इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस इंडिया तो है, साथ में 2 कंट्रीज़ वेस्ट एशिया से हैं, दोज आर इजराइल and UAE. This was possible only because of Abraham Accord. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से कि प्रॉब्लम कहाँ से एमर्ज होना स्टार्ट होता है. प्रॉब्लम यहाँ से एमर्ज होना स्टार्ट होता है कि व्हेन यूएस डज नॉट वांट टू बी अ की प्लेयर इन वेस्ट एशिया. ठीक है, तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा. तो ये वैक्यूम कौन भरेगा, इजराइल भरेगा या ईरान इस वैक्यूम को भरेगा इन वेस्ट एशिया. ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट उस चीज़ से. ठीक है, उसके बाद जो एक स्टिकिंग पॉइंट है ईरान को लेकर, दैट इज़ ईरान न्यूक्लियर डील. ईरान न्यूक्लियर डील को हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, JCPOA. अब JCPOA के बारे में समझिए. व्हेन इट केम into existence in 2015, JCPOA. अब JCPOA क्या है? JCPOA it is popularly known as Iran Nuclear Deal. ठीक है. Now there was a report by International Atomic Energy Agency, which is headquartered in Vienna in Austria, which said that Iran is developing a enriched uranium. ठीक है, enriched uranium. तो एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब होता है कि द यूरेनियम विच विल बी यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब. ठीक है, एंड इफ ईरान इज सक्सेसफुल इन मेकिंग एनरिच्ड यूरेनियम देन डेफिनेटली ईरान कैन बिकम न्यूक्लियर पावर. नाउ इफ ईरान बिकम्स न्यूक्लियर पावर देन देयर विल बी अ मैनी प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया. तो इसको रोकने के लिए P5+1 कंट्रीज, P5 मतलब परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, +1 का मतलब यहाँ पे होता है जर्मनी. दे टूक अ डील, दे क्रिएटेड अ डील विद ईरान. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ईरान विल सरेंडर इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी टू दिस कंट्रीज एंड इन रिटर्न द इकोनॉमिक सैंक्शंस विच हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन ईरान बिकॉज ऑफ कैरिंग आउट द न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, it will be withdrawn. So Iran can now grow economically also. इस sanctions की वजह से ईरान के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. पर इसमें प्रॉब्लम, अब ये डील साइन हो गया, ईरान ऑल्सो एग्रीड विद दिस डील. प्रॉब्लम आया 2018 में जब ट्रंप थे प्रेसिडेंट यूएस के. तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब ट्रंप बने यूएस के प्रेसिडेंट तो इजराइल का जो कंसर्न था वो ये था कि सिर्फ न्यूक्लियर डील ही नहीं, ठीक है, बाकी जो भी मिलिट्री डिफेंस के लिए जो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं वो सब होते हैं उसको भी स्टॉप करने की ज़रूरत है. साथ साथ में ईरान विच इज़ फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर, फॉर एग्जांपल येमेन, ईरान इज़ येमेन. तो येमेन में 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है. एक चल रहा है हौती रेबल्स के बीच में
ठीक है। उसके बाद एक चल रहा है जो वहाँ के गवर्नमेंट फोर्सेस हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट फोर्सेस दे आर सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया, हाउथी रेबल्स दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। तो जो इस टाइप का जो शैडो वॉर चल रहा है उसको भी रोका जाए, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड व्हेन ट्रम्प बिकेम प्रेसिडेंट, ही विथड्रू फ्रॉम दिस डील। तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और इट कंटिन्यूड टू मेंटेन द सैंक्शन ऑन ईरान। नाउ अगेन द रीनेगोशिएशन स्टार्टेड विद ईरान इन वियना। जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तो ईरान के कुछ डिमांड्स थे। पहला कि ईरान का एक एलिट फोर्स है विच इज़ कॉल्ड एज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप्स, उसको यूएस ने टेरर ग्रुप में रखा है। सो दैट इज दैट यूएस नाउ ईरान वांट्स कि इस ग्रुप को टेरर ग्रुप न माना जाए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट दे वांट एश्योरेंस फ्रॉम यूएस कि अब जो डील होगा उसमें यूएस को बैकआउट नहीं करना चाहिए। मीन्स यूएस शुड गिव एश्योरेंस टू ईरान दैट यूएस इज नॉट गोइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम दिस बिल, ठीक है। उसके बाद इसराइल जो है वो अपने तरीके से भी डील करता है, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक भी करता है, ठीक है ना। तो वो जो फॉलो करते हैं तरीका उसको कहते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। सो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन में क्या है कि इसराइल हैज़ कैरिड आउट सेवरल ऑपरेशंस इनसाइड ईरान टारगेटिंग इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम। ओके, सो दिस वाज कॉल्ड एज ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन बाय नाफ्ताली बेनेट, ठीक है, हु वाज द इजराइल फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि यू हैव टू हिट द हेड ऑफ ऑक्टोपस नॉट द टेंटिकल्स, मतलब सीधा जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है सीधा वहीं पे अटैक करो। बट उसके बाद ईरान हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डेड बाय कैरिंग आउट ड्रोन अटैक्स, ओके, in the settlements which are used by Iraqi forces in Israeli forces in northern Iraq, ठीक है। उसके बाद Israel has carried out hundred of air strikes inside Syria in recent years targeting the Iranian supplies and proxies who are fighting in Syria. Now friends, let's come to Amarnath Yatra. So Amarnath Yatra में flash flood हुआ है which has killed at least 13 people who were mainly pilgrims. तो फ्लैश फ्लड्स जो होता है वो मतलब फ्लैश फ्लड्स एक टाइप का कि अचानक से वाटर लेवल जब बढ़ जाए, अचानक से बारिश हुई और वाटर लेवल बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड। नाउ दिस फ्लैट फ्लड हैज़ कॉज्ड लैंडस्लिप नियर द बाल्टाल बेस कैंप इन गंदरबाल एरिया ऑफ सेंट्रल कश्मीर। लैंडस्लिप्स हमने पहले भी मणिपुर और शिमला के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये माउंटेनियस एरिया है, हैवी रेनफॉल हुआ, रॉक स्ट्रक्चर वीक हुआ तो लैंडस्लिप हो गया। अब यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस फ्लैश फ्लड, ठीक है। फ्लैश फ्लड का मतलब दैट अचानक से जो आपका वाटर लेवल है वो इतनी तेज़ बारिश होती है, कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना और अचानक से वाटर लेवल ओवरफ्लो कर जाना और फ्लड लाना। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट क्लाउड ब्रस्ट, इट मीन्स रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एन आवर, वेयर एज डेटा सॉरी तो यहाँ पे ये है कि अगर एक घंटे में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए मतलब 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड। सो क्लाउड बर्स्ट। सो क्लाउड बर्स्ट दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स ओवर अ स्मॉल एरिया। सो इसको आईएमडी कैसे डिफाइन करता है, दैट इट इज़ अ वेदर फिनोमिना विद अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल एक्सीडिंग 100 mm पर आवर, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कि एक घंटे में 100 mm की बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर। So 100 mm over a geographical region of approximately 20 to 30 square kilometer. So अब आप देखेंगे क्लाउड बर्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा हाई रेनफॉल, शॉर्ट ड्यूरेशन इन अ स्मॉल एरिया। ये तीन हमारे क्वालिफिकेशन हो गए या क्राइटेरिया हो गए क्लाउड बर्स्ट के लिए। Now, one-liners. Prime Minister to unveil emblem on new parliament. So the state emblem जानते हैं ना आप, सारनाथ कैपिटल का जो किंग लायन कैपिटल है, that is our emblem. So it will be now unveiled. Now it has been, the emblem has been created by sculptures Sunil Deore and Lakshman Vyas. Okay, and the fabrication has been done in Aurangabad, Jaipur and Delhi. चलो
Now this is again about the G20, which I have already discussed. Now if you will just see G7 summits, G20 summit, so there are 20 of the world's biggest economic powers such as US, Russia, European Union, India, Indonesia and Japan, and they discuss global economic matters. सो यहाँ पे जैसे कि हमने G7 में देखा था कि G7 में भी कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन क्राइसिस वॉज लिंगरिंग. ओके, सिमिलरली इन G20 ऑल्सो देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रशिया एंड USA ओवर यूक्रेन. नाउ अगेन अबाउट शिंजो अबे, जो मैंने पहले डिस्कस किया है, दैट ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव द टू set the stage for a Quad framework. He has also led Quad Asian-led forums. India is Indo-Pacific Oceans Initiative, Asia-Africa Growth Corridor, and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. He has contributed to it also. Now he was awarded Padma Vibhushan in 2021, which is country's second highest civilian award. जो सबसे highest civilian award होता है इंडिया का, that is भारत रत्न. ठीक है ना, भारत रत्न. फिर second is Padma Vibhushan, then Padma Bhushan, and then Padma Shri. Now over here our prime minister is making a statement, but यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा information आ गया है, that is about आयुष्मान भारत scheme. So what is आयुष्मान भारत scheme? It tries to cover 50 crore poor people who get insurance cover of rupees 5 lakh per annum. The next is defense exports. So if you will just see, a new figure has come, but defense exports from India has touched 13,000 crore. So if you will just see that India's defense export has been estimated at 13,000 crore, the highest ever. यहाँ पे जो private sector है, it accounts for 70% of the exports, while public sector firms accounted for the rest 30%. Now if you will just see that India's defense import from US, they have gone up significantly, and Indian companies have been increasingly becoming part of the supply chain of US defense companies. उसके बाद इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी साइन किए हैं. तो इन जनवरी टू इंडिया साइन $374.96 million डील विद फिलीपींस टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. तो 3 बैटरीज ब्रह्मोस के दिए जाएंगे. ब्रह्मोस के बारे में मैं आपको बता दूं, इट इज़ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सुपरसोनिक मीन्स ट्रैवलिंग एट with the speed of Mach 5, means 5 times greater than speed of sound. That is called as Mach 5, and it was jointly developed by India and Russia, or the name is based on 2 rivers, Brahmaputra and Moskova river. Now Defense Minister Rajnath Singh, he is going to inaugurate a synopsium, an exhibition on artificial intelligence in defense organized by the डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. उसके बाद हम देखेंगे कि देयर इज़ अ हाई पावर्ड काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ, एंड डिफेंस AI काउंसिल इज स्पेयर हेडिंग द इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. देखिए हमने कुछ दिन पहले इंडस्ट्री 4.0 के बारे में भी पढ़ा था. तो ये इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है? दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ AI इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.